Hi friends, it's Deepika here. Welcome back to my channel. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਂਸ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ, ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਐਟ ਫਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ING, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ? ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਜ਼, ਐਮ ਐਂਡ ਆਰ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਪੈਟਰਨ ਐਟ ਫਸਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਫਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹੇ ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ। ਫਾਈਨ। ਐਟ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਤਾ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ is, am or are, and first form of verb, then ING, then object। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਇਜ਼, ਐਮ ਐਂਡ ਆਰ। ਫਾਈਨ। ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੇਸ ਨਾਲ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੀ, ਸ਼ੀ ਔਰ ਇਟ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਨੇਮ ਆਲਸੋ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ। ਫਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਨ। ਐਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਪਲੂਰਲ ਫੋਰਮ ਨਾਲ। ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਵਚਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੀ, ਯੂ ਐਂਡ ਦੇ। ਇਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਐਮ ਲੱਗੂਗਾ ਆਈ ਨਾਲ, ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ
प्लूरल सबजैक्ट मीनस वी यू और दे। जिथे भी अपने को मोर दैन वन जने कंटेन होणगे उत्थे आपां आर दा यूज़ करांगे। फाइन, हुण सब नूं समझ लग गई होएगी कि इज़ आपां कित्थे लगाना है, एम कित्थे लगाना है एंड आर कित्थे यूज़ करना है। नाउ लैट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। आपां पहला सेंटेंस बोलिया सी ओह रो रही है, ओह रो रही है। आपां किद्दां रैकोगनाइज करांगे, टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, पिछे की लग्या अपने को रही है, दैट मीनस इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। हुण आपां इहनूं बनाने आ। सब तो पहलां आपां सबजैक्ट लगाना है, उस तो बाद आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे दैट इज़ एम आर। दैन आपां लगावांगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। दैन आपां की लगावांगे ऑब्जैक्ट। फाइन, सब तो पहला सबजैक्ट की है ओह रो रही है मीनस शी इज़ अ गर्ल। दैन आप यूज़ करांगे सब्जेक्ट शी इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी विल प्लेस हियर इज़। शी इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रो रही है, रोन दी इंग्लिश होंदी है क्राई, दैट्स वाई आई एम प्लेसिंग हियर क्राइंग। क्राई इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। नाउ एज यू सी यहाँ पे कोई भी इत्थे कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दी सेंटेंस विल एंड लाइक दिस। फाइन, शी इज़ क्राइंग, ओह रो रही है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ओह कॉफ़ी पी रहे हन, ओह कॉफ़ी पी रहे हन। इनू आप किवें बनावांगे, ओह इज़ सब्जेक्ट, कॉफ़ी इज़ ऑब्जेक्ट, पी रहे हन इज़ अ वर्ब। नाउ प्लेस एट फर्स्ट सब्जेक्ट ओह कॉफ़ी पी रहे हन मीन्स दे आर प्लूरल इन फॉर्म, सब्जेक्ट इज़ प्लूरल इन फॉर्म। दे ओह लई आप यूज़ करांगे दे। जो इत्थे एक वचन हुंदा मीनस सिंगुलर सब्जेक्ट हुंदा तो आप ही यूज़ करदे और शी यूज़ करदे, वो अकॉर्डिंग टू आप पिछों देखांगे सेंटेंस वो मेल है या फीमेल है। फाइन, लेकिन इत्थे रहे हन तो इत्थे आपां नूं कुछ भी मैंशन नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, सो आप दोनों लिए दे यूज़ कर सकते हैं। दे, नाउ दे इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी शुड प्लेस हियर आर। दे आर हैल्पिंग वर्ब भी लग गया, हुण आपां लगानी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। दे आर ड्रिंकिंग, drink first form of verb and plus ING. They are drinking coffee. Fine. Now third sentence is ओह लाइब्रेरी जा रहा है, ओह लाइब्रेरी जा रहा है। ओह इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी शुड प्लेस हियर ही। आफ्टर दैट आपां ने की लगाना है हैल्पिंग वर्ब। जान दी इंग्लिश हुंदी है गो, ही हैल्पिंग वर्ब की लगू ही नाल इज़। ही इज़, जान दी इंग्लिश गो प्लस ING गोइंग, ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी। फाइन, ही इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग इज मैंने जाना होंगे, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। लाइब्रेरी इज़ एन ऑब्जेक्ट। फाइन, नाउ फोर्थ सेंटेंस इज असी अपने घर आ रहे हाँ, वी आर coming to our home. We is subject, are is helping verb, coming is first form of verb plus ING, then object. Fine. ये आप पढ़िया सी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सिंपल केस, अगर अपने को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सिंपल फॉर्म दे विच आंदा है। हुण आप डिस्कस करांगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का नैगेटिव केस अगर अपने को आवे तो आप की पैटर्न फॉलो करांगे, दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू सिंपल।
फाइन। एट फर्स्ट आप सबजैक्ट प्लेस करांगे, फिर आप हैल्पिंग वर्ब दैट इज़ एम और आर प्लेस करांगे। आफ्टर दैट नॉट यूज़ करांगे, दैन रेस्ट इज सेम पैटर्न। मीनस सब तो पहला सबजैक्ट लगावांगे, हैल्पिंग वर्ब लगावांगे, बस इत्थे आपां ने नोट ऐड करना है, बाकी सारा सेम रहेगा पैटर्न। फाइन। सबजैक्ट, हैल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, दैन ऑब्जैक्ट। बहुत ईजी है अगर आपां ध्यान नाल टेंसेस नूं पढ़ीए तां। नाउ लैट्स टेक एन एग्जाम्पल। ਉਹ अपना कमरा साफ नहीं कर रही है। ਉਹ अपना कमरा साफ नहीं कर रही है। कहते कल बहुत ज़्यादा हनेरी आई सी बट फिर भी वो अपना कमरा साफ नहीं कर रही है। शी इज़ वेरी लेजी। सो इनू आप किवें बनावांगे हुण? शी इज़ आ सबजैक्ट, शी इज़ सिंगुलर सबजैक्ट, सो वी शुड प्लेस हियर इज़। शी इज़, फिर आप की लगाया सी उत्थे पैटर्न दे विच नॉट, इत्थे सबजैक्ट फिर हैल्पिंग वर्ब दैन नॉट दैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING। शी इज़ नॉट, साफ करन दी इंग्लिश हुंदी है क्लीन, क्लीनिंग दैट इज़ ING। शी इज़ नॉट क्लीनिंग, अपना कमरा मीनस ओदा कमरा, ठीक है। शी लई आपां हर यूज़ करांगे, हर इज़ पोजैसिव प्रनाउन, ये आपां फिर पढ़ांगे जाके जदों आपां प्रनाउन पढ़ांगे। ओके। शी इज़ नॉट क्लीनिंग हर रूम। शी लई आपां हर यूज़ करते हैं, ही लई आपां हिज यूज़ करते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ਉਹ पत्र नहीं लिख रहा है। ਉਹ पत्र नहीं लिख रहा है। इनू आप किवें बनावांगे? ही इज़ सबजैक्ट, इट इज़ अ सिंगुलर। ही इज़ नॉट राइटिंग आ लेटर। Are you getting me? If yes, please like this video. He is singular subject, is a helping verb, not is for negative sentence, and writing is a verb plus ING. A letter is an object. Not इत्थे negation create कर रहे हैं। Fine. So it is called negative sentence of present continuous tense. Now let's move on. ਉਹ ਚਾਹ नहीं बना रहे ਹਨ। रहे ਹਨ तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता चल गया कि सब्जैक्ट की है प्लूरल। सो दे इज सब्जैक्ट, दैन हैल्पिंग वर्ब की लगूगा दे दे नाल आर। दे इज़ प्लूरल सब्जैक्ट, सो इत्थे आपां आर प्लेस करांगे। दे आर नॉट मेकिंग टी। फाइन। ए सब्जैक्ट है, आर इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट इज़ फॉर नेगेशन, एंड मेकिंग इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, देन टी इज़ एन ऑब्जेक्ट। फाइन। Now look at this. If there is someone's name, अगर मैं बोला राम सड़क ते नहीं चल रहा है, तो अपन क्यों बनावांगे? राम इज सिंगुलर, राम इज नॉट वॉकिंग ऑन द
गॉट इट। हुण आपां पढ़ांगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दा इंटैरोगेटिव केस। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस की हुंदे ने। दीज आर दोज सेंटेंसिस विच आस्क्स एनी क्वेश्चन। कहंदे ओवले सेंटेंस जिहड़े अपने तो कोई भी प्रश्न पुछन तां उन्हां नूं आपां की बोलदे हां, इंटैरोगेटिव। जदों प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस दा इंटैरोगेटिव केस आंदा है तां उहदे विच आपां की लिखदे हां कि ओह खाना पकांदी है। फाइन। हुण इत्थे आपां की देख रहे हैं कि सेंटेंस दे विच क्वेश्चन पूछा होया है, तां दिस मीनस इट इज़ अ इंटैरोगेटिव सेंटेंस कि वह खाना पकाउंदी है। हुण आपां इह वाले सेंटेंस नूं बनाउण लई की पैटर्न फॉलो करांगे वो देखते हैं। फाइन। सब तो पहलां आपां सबजैक्ट प्लेस करदे सी, ठीक है। उस तो बाद आपां हैल्पिंग वर्ब प्लेस करदे सी, दैट इज़ इज़-एम-आर। फिर आपां प्लेस करदे हां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई-एन-जी, फिर ऑब्जैक्ट। ये अपने कोल सिंपल दा रूल है। बट जदों इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनावांगे आपां बस इहदे विच हैल्पिंग वर्ब और सबजैक्ट दी पोजीशन एक्सचेंज करांगे। जिथे हैल्पिंग वर्ब है उत्थे सबजैक्ट लगूगा, जिथे सबजैक्ट है उत्थे हैल्पिंग वर्ब लगूगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल कि वह खाना पकाउंदी है, तो आप की बनावांगे, पहला आप लगाना है हैल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है सबजैक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई-एन-जी, दैन आप लावांगे ऑब्जैक्ट। फाइन। लास्ट क्वेश्चन मार्क। इज़ शी इज़ सिंगुलर, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी शुड प्लेस हियर इज़ शी कुकिंग फूड। लास्ट क्वेश्चन मार्क। फाइन। ए अपने को हेल्पिंग वर्ब, दैन सबजैक्ट, दैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई-एन-जी, दैन ऑब्जैक्ट। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। कि ओह चिल्ला रहा है। इज़ ही शाउटिंग। लास्ट क्वेश्चन मार्क। फाइन। ही इज़ सिंगुलर सब्जैक्ट, पहला आप प्लेस करना हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जैक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आई-एन-जी, दैन ऑब्जैक्ट। इत्थे ऑब्जैक्ट कुछ है नहीं, सो आप इनू इदां ही बनावांगे। इज़ ही शाउटिंग। नाउ कि ओह शिमला आ रहे हैं। कि ओह शिमला आ रहे हैं, तो इनू आप किद्दां बनावांगे। सब तो पहला हैल्पिंग वर्ब, दैट इज़ दे, दैट इज़ एम-आर। अकॉर्डिंग टू दे वी शुड प्लेस हेयर आर। दे इज़ सब्जेक्ट हेयर। आर दे कमिंग टू शिमला। एंड द क्वेश्चन मार्क। फाइन। आर इज़ हैल्पिंग वर्ब। मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि इंटैरोगेटिव केस दे विच सब तो पहला आप हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे, आफ्टर दैट सबजैक्ट। बाकी सारा पैटर्न अपने को सेम रहेगा। फाइन। कि ओह अपने वालों नूं कंघी कर रही है। अपने वालों नूं कंघी कर रही है। की बनावांगे इहदा अपना, इज़ शी combing her hair। Fine. Is helping verb, she is subject, then first form of verb ing, then object। Fine। आई होप तुहानूं अज दा लैक्चर समझ आ गया होएगा चंगी तरह। आपां अज कीता है
present continuous or simple case, and negative and interrogative sentences. Fine. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ फ़ोन 'ਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਨ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।